Welcome back. Members of Parliament have voiced concern over the content of TV channels and wanted it to be curbed, prompting the government to say that it could consider holding an all-party meeting to discuss its regulation but would issue no fatwa. Information and Broadcasting Minister Ambika Soni told the Lok Sabha that a draft Broadcasting Services Regulation Bill has been put on the website and a final bill could be brought for consideration of Parliament after the stipulated time provided to get feedback from various stakeholders is over. Noting that media is a sensitive matter, she said it was important to get the views of those who would be affected by the bill. She suggested that the government could consider an ordinance if no consensus is reached in the House and views of those who would be affected are also not considered. Well, to discuss this issue, we have with us in our studios Professor H.S. Walia. He's from the Department of Journalism, Punjabi University, Patiala. B.K. Srivastav, DG, MGS Institute of Public Administration, Punjab, and Takinder Panwar, member of CPIM Secretariat. Well, thank you so much for being with me this evening. Professor Walia, if I begin with you. Yes, we have Ambika Soni raising questions that content on television now needs to be checked. We have two types. We have news channels and then we have the non-news channels. Of course, and both the contents in their respective ways need to be checked. If you look at non-news channels, there's the question of vulgarity, of obscenity. Would you agree that we first need to put a check? Yes, of course. We should. There should be check on the content of the both type of channels, news channels and entertainment channels, as you said. But there's two angles of this whole scene. Number one, who will check and किस तरह का check, कैसा check लगना चाहिए? ये we have to keep in mind before this. देखिए, this is very clear कि content of the news channels are I can say not properly ethical, there is a unethical content also in so many channels, particularly जो है ना reality shows जो होते हैं, उसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जो नहीं दिखाना चाहिए. नंबर वन के किन लोगों को दिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं. आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें सीधा गाली गलौज दिखाया जा रहा है और बेडरूम सीन कैमरा पे दिखाए जा रहे हैं, ऐसे भी हैं. नंबर टू जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली काफी ज्यादा जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें कॉमन मैन इज टोटली इग्नोर्ड और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया जा रहा है और उनको कुछ और दिया जा रहा है. मैं कहता हूँ जस्टिस कारसू ने एक बार बहुत अच्छी बात की. वो कहने लगे कि रोम में ये कहा जाता था कि अगर रोटी नहीं है जनता को सर्कस दिखाओ और इंडिया में अगर प्रॉब्लम्स ऐसी है तो जनता को क्रिकेट मैच दिखाओ. तो ऐसी बात है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साइड ट्रैक किया जाता है. लेकिन पॉइंट एक और भी हमें डिस्कस करना चाहिए इसमें कि व्हाट्स द नीड ऑफ दिस डिस्कशन. क्या अन्ना हजारे जब बोलता है उसकी कवरेज, अन्ना हजारे की कवरेज ने गवर्नमेंट को ये सोचने के लिए मजबूर किया? ये सियासी लोगों ने क्या किया? हमारे पास हमारे चैनल्स के लोगों को पेड न्यूज के लिए कंपेल किया. अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और सभी सियासी पार्टी, देयर इज नो कॉमन पॉइंट. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव इन दिस कंट्री, बट देयर इज वन पॉइंट कि मीडिया को कर्व करो, मीडिया को कंट्रोल करो. मैं कहता हूं मीडिया को चेक तो रखना चाहिए, लेकिन बड़ी बात तो ये है कौन कंट्रोल करे. जो अंबिका सोनी कह रही है, जो जस्टिस कारसू कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, क्या अन्ना हजारे को दिखाने की उनकी इजाजत लेनी होगी? क्या क्या दिखाया जाए? अब एक बात और आ गई. अब देखिए क्या बात आ रही है. वो कहते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट दिए उन्होंने कि जो आजादी है प्रेस की उसको पूरा जो कंप्लीट आजादी, जिसको एब्सोल्यूट फ्रीडम शुड नॉट बी देयर. एक बात उन्होंने की. दूसरी बात उन्होंने क्या डिमांड की कि मेरे को ये अधिकार प्रेस काउंसिल, और उन्होंने बोला कि मीडिया काउंसिल बनाई जाए. उन्होंने बोला कि हमें ये अधिकार दिया जाए कि हम गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो रोक सके, चैनल को फाइन कर सके.
अगला बात जो उन्होंने अगली बात की वो बहुत कमाल की थी कि चैनल्स का जो साल बाद हम लाइसेंस रिन्यू करते हैं वो उसको रोकने की हमें आयात दी जाए। सो अब ऐसा जब हो रहा है, अगर ऐसा होने लगा, गवर्नमेंट भी ये कह रही है और प्रेस काउंसिल या मीडिया काउंसिल भी ये कर रही है। लेट मी आस्क मिस्टर श्रीवास्तव, आप इसको कैसे देखोगे? देखिए, इसमें फंडामेंटल्स ये हैं कि पहली बात तो मीडिया जो है कॉमर्शियली रन इंस्टीट्यूशन है, सो कोई पब्लिक ट्रस्ट नहीं है। तो एक तो ये है कि आदमी विल बी स्वेड बाय द कॉमर्शियल इंटरेस्ट। दूसरी बात, जब भी कोई चीज, कोई भी संस्था पब्लिक को मुतासिर करती है तो वहां पे रेगुलेशन जो है उसकी मांग जायज होती है। कोई भी चीज, कोई भी इंश्योरेंस आप कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, जहां पब्लिक इन्वॉल्व हो गई और उसको ठगी जा सकती है या एक्सप्लॉइट हो सकती है, वहां पे रेगुलेशन इज कॉल्ड फॉर। आप भी एग्री करोगे कि रेगुलेशन चाहिए? Of course, there has to be some regulation. There's no doubt about that. There's no doubt about that. But I think I'll just try to put it in a larger spectrum. And the larger spectrum that needs to be debated is, and which pertains to the fact that I think there is a strong disconnect present. Of course, it was there in the past, but slightly lesser degree. But now present between the mass reality and the mass media. You see, there is a strong disconnect. Unless and until you address that issue, I mean, it's good that you brought this this debate to the fore about regulation and all. But that disconnect, and see how the disconnect is reflected. I mean, you find a news item saying that a particular kind of number was sold for 1.5 lakhs, and then another, but then you don't cover, I mean, the mass suicides that are taking place from, I mean, you have 12 business correspondents, even for those dailies and channels who do not have any business dailies or for that matter. Right. But you do not have a single correspondent for labor. I mean, Hindu has, I knew Hindu started some rural correspondent, where mass of the people, so I mean it's a disconnect between your mass of the people and the mass media. Unless until you address that. Mr. Srivastava, आप कहोगे कि there is a disconnect between mass of the people and media? No, पहले मुझे fundamentals कहने दीजिए। दूसरा fundamental है constitutional mandate, because सारा हिंदुस्तान उसी से regulated है। पहले है आर्टिकल 19 में freedom of speech। कंट्रोवर्सी कहां से आती है? एक तरफ हम कहते हैं देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो डेमोक्रेसी का हब है। दूसरी तरफ उसी में ये लिखा हुआ है, 7 रीजंस दिए हुए हैं 19 में, आर्टिकल 19 में, कि इन ग्राउंड्स पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल किया जा सकता है। उसी में पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी भी इंक्लूडेड है। फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज हैं, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, एंड सो ऑन। तो जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली ये जो 7 रिस्ट्रिक्शंस की गुंजाइश उसमें है, उससे रेगुलेट होती है। दूसरी चीजें हो रहे हैं, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में है इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सेलेंस को फरोग देना, जिससे पूरा मुल्क तरक्की करे और जिससे कि अच्छी बातें सामने आए, बुरी बातें सामने ना आए, अपनी हेरिटेज और वैल्यूज को फरोग देना, ये सब भी हमारी ड्यूटीज में शामिल हैं। तो मीडिया को भी उन ड्यूटीज से अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, एक इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल जो हमारी हम कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। तो वो मीडिया जो है इट हैज टू बी सब्जेक्टेड टू। देखिए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है, अब बहुत बढ़िया संविधान है हमारे पास, अम्बेडकर साहब का दिया हुआ बहुत बड़ा संविधान है, लेकिन आप उसी की एक्सक्लूजन देखिए क्या है। आप मुझे एक एडिटर बताइए पूरे देश में जो दलित है, मतलब अब आप देखिए किस लेवल का एक्सक्लूजनिज्म है कि पूरे देश में आपके पास किसी भी बड़े चैनल में और मतलब किसी भी आपके अखबार के उसमें एक भी दलित नहीं। तो मतलब क्योंकि आपका मीडिया जो आज है, इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैस रियलिटी उससे वो ना सिर्फ एक्सक्लूजन, वो जो कल्चर का सवाल है, उसके साथ साथ वो जो बुनियादी इशू है उसको एड्रेस नहीं करता है। और क्योंकि जैसा बुश के जमाने में कहते थे कि जॉर्ज बुश का, और हमारा भी सिमिलर है सिचुएशन, कि आपके पूरा सीईओज चलाती है सरकार को, और सीईओज कौन है? वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपका मीडिया भी चला रहे हैं। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इतनी भयानक स्थिति नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी तरह की स्थिति आ रही है। तो तभी आप देखते हो फॉर अ फैशन शो होल वीक यू हैव 512 कॉरेस्पॉन्डेंट्स कवरिंग एंड एवरीवन ट्राइंग टू स्पेस एंड टू क्लिक, आई मीन टू गेट द बेस्ट शॉट, but then you won't find, देखिए मतलब समझ रहे हैं, I understand what you're trying to say. Now, कि आपका वो जो फैशन शो से जो कॉस्ट्यूम डिजाइन होकर 0.22% लोग भी उसको नहीं डालते।
So that is what I mean should be the focus. Good that you brought How this will debate. you, Professor Walia, how would you respond to that? कि we are focusing. ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात मतलब कास्ट की बात मैं नहीं कहता, वो तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, कोई भी चला सकता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने चैनल चला रही हैं। नहीं वो देखिए स्पेक्ट्रम में फिर भी उसको जगह है। नहीं वो अभी तो अल्टरनेट मीडिया की बात हो, तो न्यू मीडिया आ गया, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कौन रोकता है? आप अपनी वेबसाइट चलाइए, अपना कुछ भी करिए। जानिए उसको, देखिए मैं जो कह रहा हूँ मैस मीडिया का, मैं मैस मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्यों, ये देखिए हम लोग मीडिया के हैं, हमें चाहिए कि हमें क्या करना है। सेल्फ रेगुलेशन की बात हमारे जस्टिस वर्मा का एक बना रहा, मैं जो बात कर रहा था, हमें देखना है कि आपके, मैं सहमत हूं कि देखिए कॉमन मैन जो, देखिए इंडिया का जो क्विकली बिकॉज़ आई हैव अ कॉलर वी हैव टू टेक, जो है उसको कवर कीजिए। मैं आपकी बात से फुली एग्री विद यू, बट हु विल डायरेक्ट करेंगे? Yes, we will come to that, sir. We'll come to that. Let's just take in a caller. We have a caller online. Sir, आप अपना नाम और कहाँ से हैं हमें बताइए। गुजरात के साबरकांठा जिले के सटम्बा गांव से पंचाल परेश बोल रहा हूं। हाँ जी मिस्टर परेश, आपका सवाल। मीडिया को जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है मीडिया पे, वो मीडिया के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए पहले तो सबसे बड़ा खतरा है। पॉलिटिशियंस सभी क्षेत्रों के अंदर अपना दबाव बनाना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। आप देखिए स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स है, एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स है, बिजनेस में भी पॉलिटिक्स है, और अभी मीडिया के ऊपर भी ये पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करने लगे हैं। अगर मीडिया नहीं होता, आजादी से पहले मीडिया ने कई ऐसी अहम भूमिका की थी कि आज हमारा भारत आजाद है। अगर मीडिया पे भी